السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ نئے دور کا آغاز، گہری بندرگاہ گوادر، دنیا اور ملک کے دیگر حصوں سے جدید فضائی رابطے کا آغاز۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 10 جنوری سے فلائٹ آپریشن شروع ہوگا۔ ملکی اور بین الاقوامی پروازیں شروع کرنے کا عمل جاری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بارے میں بریفنگ۔ مصروف ٹرانزٹ پوائنٹ بنانے کے لیے حکمت عملی مرتب کی جائے۔ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں رابطہ سڑکوں کا نظام بہتر کیا جائے، وزیر اعظم کی ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے انسداد پولیو ٹیم کی ملاقات، حالیہ مہم اور نتائج پر بریفنگ۔ انسداد پولیو میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو بڑھایا جا رہا ہے۔ پولیو کے خلاف بل گیٹس فاؤنڈیشن اور تمام ملکی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے مشکور ہیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق خان کی ملاقات، دورہ افغانستان سے متعلق بریفنگ دی۔ معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ محمد نواز شریف کی قیادت میں ساری توانائیاں خدمت اور ترقی کے لیے وقف ہیں۔ پاکستان کے لیے مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست کی قربانی دی۔ ہم نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی مگر انتشار اور تقسیم کی سیاست نہیں کی، معیشت اور سلامتی کو ترجیح دی۔ عوام کی حمایت سے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے محنت جاری رکھیں گے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مسلم لیگ کے یوم تاسیس پر بیان۔ صدر مملکت کی جانب سے بینک فراڈ کے 31 متاثرین کو ریلیف کی فراہمی، 6 بینکس کو 2,41,36,000 روپے واپس کرنے کی ہدایت۔ صدر آصف علی زرداری کی بینکنگ محتسب کے فیصلوں کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلے۔ عوام بینکوں سے متعلق تنازعات اور فراڈ سے نمٹنے کے لیے بینکنگ محتسب سے استفادہ کریں، صدر مملکت۔ حکومتی معاشی پالیسیز پر سرمایہ کاروں کا اعتماد، کاروباری ہفتے کے پہلے روز اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، انڈیکس میں 3,900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 1,15,258 کی سطح پر بند۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں اجلاس، ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ اور ہوا بازی کی صنعت کی ترقی سے متعلق اقدامات کا جائزہ۔ ہوا بازی کو منافع بخش صنعت بنانے اور مسافروں کو معیاری خدمات فراہم کرنے کے لیے تمام تر کوششیں کی جائیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم الزعابی کی ملاقات، پنجاب اور یو اے ای کا ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ۔ مریم نواز کی پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت، خصوصی مراعات اور سازگار ماحول کی یقین دہانی۔ صحت، تعلیم اور توانائی کے شعبوں میں یو اے ای کی معاونت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مریم نواز۔ سی پیک پاکستان چین دوستی کا استعارہ، نیوکلیئر انرجی توانائی بحران کا دیر پا حل ہے۔ چشمہ نیوکلیئر منصوبہ ترقی اور خوشحالی کا سنگ میل، چشمہ یونٹ 5 سے قومی گرڈ میں مزید بجلی شامل ہوگی۔ ماحول دوست توانائی کے لیے ایٹمی توانائی کا فروغ اہم ہے۔ پاکستان اور چین کا تعاون مشترکہ کامیابی کی ضمانت ہے، وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال۔ خیبر پختونخوا حکومت کی نااہلی سے اناج ضائع، خیبر پختونخوا میں 10 ارب مالیت کی گندم گوداموں میں خراب۔ صوبائی وزیر خوراک ظاہر شاہ تورو نے لیبارٹری رپورٹ کی تصدیق کر دی۔ 77,762 میٹرک ٹن گندم ناقابل استعمال ہو گئی، شیلف لائن ختم ہو چکی، کوئی آدھی قیمت پر بھی خریدنے کو تیار نہیں، محکمہ خوراک کی رپورٹ میں انکشاف۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری جاری، 27 فلسطینی شہید، 149 زخمی۔ شمالی غزہ میں ایک صہیونی فوجی ہلاک، متعدد زخمی۔ کمان ادوان اسپتال کے بعد اب مزید 2 اسپتالوں پر اسرائیل کا دھاوا۔ لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری۔
मकबूजा कश्मीर में गासिब भारतीय फोर्सेज ने इंसानी हकूक कदमों तले रौंद डाले। नजरबंद हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों की हालत जार अबतर। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का तशवीश का इजहार। इंसानी जान दांव पर हुकूमत खानों में तिब्बी सहूलियात और मुनासिब खुराक का फुकदान। हुर्रियत क़यादत की अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक की तंजीमों से सूरत हाल का नोटिस लेने और गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा। ना मानू की रट, मोदी सरकार की ढिठाई, भारतीय किसान सरापा एहतजाज। दिल्ली चलो रेल रोको के बाद अब पंजाब बंद तहरीक का आगाज। तहरीक से मामूलात जिंदगी मफलूज। किसान तंजीमों का सैकड़ों मकामात पर पहिया जाम और रेलवे ब्लॉक करने का ऐलान। के लिए बेहतरीन। अरशद नदीम ने ओलंपिक में 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीता। पैरालंपिक्स में कांसी का तमगा हैदर अली के नाम। मोहम्मद आसिफ तीसरी मर्तबा एमेचर स्नूकर चैंपियन। यूएस जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल्स। दीगर खेलों में भी तमगों की बारिश। लाहौर में कायदे आजम पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। नूह दस्तगीर भट्ट ने 401 किलो वजन उठाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेशनल कायदे आजम ट्रॉफी भी नाम की। इससे कबल एशियन पावर लिफ्टिंग मुकाबलों में नूह दस्तगीर भट्ट ने 400 किलो वजन उठाकर रिकॉर्ड कायम किया था। भारत को एक और इबरतनाक शिकस्त। मेलबर्न टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम। भारत को 184 रन से हरा दिया। 340 रन के हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 155 रन पर ढेर। कप्तान पैट कमिंस मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। सीरीज का आखिरी मैच 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि गवादर का नया बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान दोस्ती की एक अजीम मिसाल है। इस्लामाबाद में इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। तफसील बताएंगी मरियम मलिक। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतल्लिक अहम इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बैनुल अक़वामी मयार और जदीद सहूलियात से आरास्ता एयरपोर्ट तामीर करने पर हम अजीम दोस्त चीन के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक मसरूफ ट्रांजिट पॉइंट बनाने के हवाले से काबिल अमल हिकमत अमली तरतीब दी जाए। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुल्क खसूसन सूबा बलूचिस्तान के दीगर इलाकों के दरमियान राबता सड़कों का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की भी हिदायत की। इजलास को न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ऑपरेशनलाइजेशन पर तफसीली ब्रीफिंग में बताया गया कि न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रकबे के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। गवादर एयरपोर्ट A380 हवाई जहाजों को हैंडल करने की सलाहियत रखता है, जबकि एयरपोर्ट से 4 लाख मुसाफिर सालाना सफर कर सकेंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान कस्टम्स ने भी इस एयरपोर्ट को नोटिफाई कर दिया है। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, पाकिस्तान कस्टम्स, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, वफाकी तहकीकाती इदारे समेत बॉर्डर हेल्थ सर्विस का अमला तैनात किया जा चुका है। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कराची और गवादर के लिए मौजूदा फ्लाइट ऑपरेशन के दौरानिये को जल्द ही हफ्ते में 3 बार किया जाएगा। गवादर से मस्कत के लिए परवाजों का आगाज आइंदा साल 10 जनवरी से हो जाएगा। पाकिस्तान की निजी एयरलाइंस चीन, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरलाइंस से गवादर से मुल्की और बैनुल अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के हवाले से भी बातचीत जारी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि एयरपोर्ट पर कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, कोरियर सर्विसेज की सहूलियात, कार्गो शील्ड्स, टेक्निकी ग्राउंड सपोर्ट आलात, फ्यूल फार्म्स, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स के लिए जगह मुख्तस की गई है। इजलास को बताया गया कि एयरपोर्ट पर बैंक ब्रांचेस के कयाम और ATM मशीनों की तनसीब के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड तमाम बैंकों से राब्ता किया गया है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बजरिया सड़क राबता बेहतर बनाने के हवाले से ईस्ट बे एक्सप्रेस वे का पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, जबकि दूसरे हिस्से की फिजिबिलिटी तैयार की जा रही है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद सादिक खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मोहम्मद सादिक खान ने वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरे अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफ किया। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बेहतर नताइज के हुसूल के लिए निगरानी का अमल जदीद खतूत पर उस्तवार करके इंसदाद पोलियो समेत सेहत के तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में इंसदाद पोलियो टीम से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स की तरफ से उन्हें लिखे गए खत का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम और उसके लिए काम करने वाले तमाम पोलियो वर्कर्स की शबाना रोज मेहनत की तारीफ की है। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स फाउंडेशन और तमाम मुल्की और बैनुल अक़वामी शराकतदारों का भी शुक्रिया अदा किया जिनकी हिमायत और ताउन से पोलियो को पाकिस्तान से ख़त्म करने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद बढ़ रही है जिसके खात्मे के लिए मरबूत कोशिशों की ज़रूरत है। उन्होंने हिदायत की कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान मुतल्लिका अफराद का पोलियो से ज़्यादा मुतासरा इलाकों के दौरों का मुनज़्ज़म रोस्टर तरतीब दिया जाए ताकि इन मुहिमों को और ज़्यादा नतीजा खेज बनाया जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी को किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में तमाम तर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएँ। वज़ीर आज़म को इंसदाद पोलियो की हालिया मुहिम और इसके नताइज पर ब्रीफिंग में बताया गया कि मकामी अफराद की मदद से इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने बैंकिंग मोहतसिब के फैसलों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर बैंकिंग मोहतसिब का फैसला बरकरार रखते हुए 6 बैंक्स को बैंक फ्रॉड के 31 मुतासरीन को 2,41,36,000 रुपए वापस करने की हिदायत की है। सदर मुमलिकत ने कमर्शियल बैंक्स की बदइंतजामी और मालियाती धोखाधड़ी से शहरियों के बचाव में बैंकिंग मोहतसिब के किरदार को सराहा। बैंकिंग मोहतसिब तवील कानूनी तरीक़ाकार के बोझ के बगैर मुतासरीन को बरवक्त इंसाफ फराहम करता है। सदर मुमलिकत ने कहा कि अवाम बैंकिंग तनाज़ात और फ्रॉड से निमटने के लिए बैंकिंग मोहतसिब की खिदमात से इस्तेफादा करें। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने इस्लामाबाद में हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग और हवाबाजी की सनत की तरक्की के हवाले से इजलास की सदारत की। उन्होंने मंसूबों के हवाले से वजारत हवाबाजी की तरफ से की गई पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहम्मद इसाक डार ने हिदायत की कि हवाबाजी को मुनाफा बख्श सनत बनाने और मुसाफिरों को मयारी खिदमात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएँ। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, सूबाई वज़रा और वफाकी सेक्रेटरीज ने शिरकत की। कमेटी ने 217 अरब रुपए की लागत से 7 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी। मंजूर करदा मंसूबों में सिंध में एमरजेंसी फ्लड बहाली प्रोजेक्ट, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले कैरेक कॉरिडोर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की नजरसानी प्रोजेक्ट और 25.4 अरब रुपए की लागत से कराची वाटर सप्लाई एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट की नजरसानी शुदा प्रोजेक्ट और पंजाब के स्कूलों में वर्ल्ड बैंक के फंडेड प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, जहां कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स 3,907 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,15,258 की सतह पर बंद हुआ। तफसील बताएंगे कराची से सुहेल जमाली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का मुस्बत आगाज हुआ। मार्केट में तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स ने 4 नफसियाती हदें उबूर की और कारोबार के अख्ताम पर 3907 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,15,258 पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान सीमेंट, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, केमिकल, कमर्शियल बैंक्स, इंजीनियरिंग, फूड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के सौदों में तेजी देखी गई। तज्जियाकारों का कहना है कि सरमायाकारी में इजाफे का क्रेडिट हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को जाता है। इकोनॉमी आपकी बेहतरी की तरफ जा रही है और इकोनॉमिक नंबर्स आपके बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि देखिए कभी कोई हमने इतना लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी इकोनॉमी इतनी जल्दी टर्न अराउंड हो जाएगी। जो हम जिस हालात थे, एक साल अगर आप पीछे चले जाएं तो डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी। तो ये सारा क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को जाता है, प्राइम मिनिस्टर को जाता है, SIFC को जाता है। ऑब्वियसली उन्होंने ऐसे इकदाम किए हैं जिससे कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है। स्टॉक मार्केट के माहिरीन का कहना है कि दोस्त ममालिक की सरमायाकारी से भी मईशत में बेहतरी आ रही है, जिसके असरात कारोबार पर नुमायां हैं। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जैसे सऊदी अरेबिया, UAE और कतर, वहाँ से आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि रेकोडिक में भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और फिर इसके साथ साथ जो कतर का फंड है वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ओवरऑल सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अब जो इन्वेस्टर बाहर से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं उन्हें एक 1 विंडो ऑपरेशन मिल जाता है और वहाँ से उनके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। आज मार्केट में 1 अरब 4 करोड़ से जायद शेयर्स के कारोबार की मालियत 40 अरब 79 करोड़ रुपए से जायद थी। मार्केट में 465 कंपनियों के कारोबार में 333 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 84 में कमी, जबकि 48 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
اور سال 2024 ملک کی معیشت کے لیے بہترین رہا۔ حکومت کی اقتصادی اور معاشی پالیسیز کے باعث معاشی اہداف کے حصول ممکن ہوا ہے اور معیشت بہتر ہوئی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد زبیر الدین۔ رواں سال موجودہ حکومت کے سخت معاشی فیصلوں کے باعث گزشتہ سالوں میں معیشت پر چھائے ہوئے تاریکی کے بادل اب چھٹ چکے ہیں اور معاشی اشاریے حکومت کی کاوشوں کی خود ہی عکاسی کرتے ہیں۔ عوام کے اعتماد کے بعد رواں سال جہاں موجودہ حکومت نے باغ دوڑ سنبھالی تو شب و روز کی انتھک محنت سے بیک وقت متعدد معاشی چیلنجوں کے لیے بھرپور صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ معاشی اہداف کے حصول کے لیے حکومت کو IMF سے رجوع کرنا پڑا، جہاں IMF کے ساتھ مذاکرات میں سیاسی استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹاف لیول مذاکرات کامیاب ہوئے اور قرضے کا اجرا ممکن ہوا۔ دوسری جانب حکومت نے برآمدات میں اضافے، درآمداتی بل میں کمی کو اپنا ٹارگٹ مقرر کیا، جس کے بعد ملکی مصنوعات کا بیرونی ممالک میں برآمد کا سلسلہ تیز ہو گیا، جبکہ ساتھ ہی ساتھ کفایت شعاری اپنانے سے درآمدی بل میں بھی کمی آئی۔ ہمارے فورن ریزروز جو ہیں وہ بہتر ہو گئے، ہمارے جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 4.7 پر آ گیا، انٹرسٹ ریٹ 24% تھا 2024 کی اسٹارٹنگ میں، تو وہ جو ہے اب 13% پر آ گیا ہے، تو ہماری فائنینشیل کاسٹ کافی نیچے آئی ہے۔ اکنامک انڈیکیٹرز بہتر آ رہے ہیں، انٹرسٹ ریٹ میں جو ہم اپیرنٹلی دیکھ رہے ہیں کمی آئی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا۔ IPP سے پازیٹیولی کچھ اس کے جو نیگوشیٹ ہو رہے ہیں کانٹریکٹس، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری آ جائے گی۔ اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو ملک کی اکانومی میں بڑی بہتری آئی ہے، کچھ پیٹرولیم کی پرائسز بھی کم ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل پرسیپشن ہمارا بہت بہتر ہوا ہے۔ IMF سے ہمارا پروگرام ہو گیا ہے، وہاں سے بھی ہمیں ٹرانچ آ گئی ہے۔ 2024 میں اوبویسلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی میں بہتری آئی ہے اور کافی ریٹس میں بھی کمی ہوئی ہے۔ 2024-25 کے بجٹ میں حکومت نے کئی شعبوں میں اصلاحات متعارف کرائیں اور ٹیکس ہدف کے حصول کے لیے ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھایا۔ بیک وقت کئی معاشی محاذوں پر حکومت کی ان کاوشوں کے باعث شرح سود 23 سے 13%، افراط زر کا سنگل ڈیجٹ میں آنا، دیار غیر میں پاکستانیوں کا ریکارڈ ترسیل میں رقوم کا بھیجنا، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 1,10,000 سے زائد کی سطح پر عبور کرنا معاشی درست سمت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ حکومت نے اسپیشلی وزیر اعظم نے، وزیر خزانہ نے محنت کی، اس محنت کے نتیجے میں دن بدن معیشت سنبھلتی گئی ہے اور کنٹینیو سنبھلتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ اسٹاک ایکسچینج ہے وہ اس کی 1 لاکھ سے زیادہ کی حد عبور ہوئی پہلی مرتبہ، اور اگر ہم دیکھیں تو جو ڈیفیسٹ ہے وہ بھی تقریباً ختم ہوا، اور جو ہماری گریجولی ایکسپورٹ کے جو نمبرز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ بجلی کے ریٹ بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ نیکسٹ ایئر میں 8 سے 9 سینٹ ہو جائیں گے۔ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگا تو ہماری فیکٹریاں بھی چلیں گی اور ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی۔ مہنگائی ہے وہ 4.6 پہ آ گئی ہے، اور انٹرسٹ ریٹ بھی کافی حد تک 13% تک آ چکا ہے، 22% سے گر کے 13% تک آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بھی 1 لاکھ سے زیادہ کے جو ہے نا اس پہ چلا گیا ہے۔ تو یہ جو اشاریے ہمیں مل رہے ہیں اس وقت، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ 2025 کا سال کافی سٹیبل رہے گا۔ معاشی تجزیہ کار پر امید ہیں کہ سال 2025 میں ملک کی معاشی ترقی مزید بہتری کی جانب گامزن ہوگی۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ 2024 پنجاب میں تعلیم کے شعبے کے لیے بھی ایک سنہرا سال رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں تعلیم و تحقیق کے فروغ کے لیے متعدد منصوبوں کی منظوری دی۔ رپورٹ کریں گے محمد طاہر کلاسرا۔ جدید دور کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے تعلیم کا فروغ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ کے اسی ویژن کے مطابق صوبے میں شرح خواندگی بڑھانے کے لیے بیک ٹو اسکول کمپین شروع کی جا چکی ہے۔ طلبہ کو جدید دور کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے صوبے بھر کے سرکاری اسکولوں میں نئے کلاس روم کی تعمیر اور ڈیرہ غازی خان، راجن پور، مظفر گڑھ کے 3,500 سے زائد اسکولوں کے 4 لاکھ سے زائد طلبہ کے لیے غذائیت سے بھرپور دودھ کی فراہمی کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں پنجاب گورنمنٹ کے کہ جنہوں نے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہونہار اسکیم کا آغاز کیا، جس سے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن لینے میں سہولت ہوئی ہے۔ IT کے حوالے سے انیشیٹو لیے گئے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ انیشیٹوز نہ صرف ہماری بچیوں کو ایجوکیشن میں آگے سپورٹ کریں گے بلکہ انٹرپرینیورس کریٹ کرنے میں بھی ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔
वज़ीर आला मरियम नवाज की पॉलिसी के मुताबिक पंजाब के तालीमी बोर्ड में आला पोजीशन लेने वाले तलबा को लाखों रुपए के इनामात देने के साथ साथ उनकी तालीमी अखराजात भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी, जबकि तलबा को ई बैग्स भी फराम की जाएंगी। तलबा को इब्तदा से जदीद रोजानात से रोशनास कराने के लिए स्कूल और कॉलेजों में नई साइंस लेबॉर्ट्रियाँ और IT लैब्स, जबकि तालबात के लिए तालीम के हसूल को आसान बनाने के लिए सूबे के तमाम गर्ल्स कॉलेजों को बसें भी फराम की जा रही हैं। वो तलबा और तालबात जो एकेडमिकली स्ट्रांग होंगे, आउटस्टैंडिंग होंगे, उनको गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, उनके तालीमी अखराजात जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। खेलों में तलबा और तालबात को इनकरेज करने के लिए उनको स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दी जाएंगी। नौजवान तलबा को मसनूई जहानत के शोबे से मुतारफ कराने के लिए चीन की तर्ज पर इब्तदाई क्लासेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम और गूगल के इश्तराक से बड़ी जमातों के हजारों तलबा को गूगल सर्टिफिकेट कोर्स भी कराए जाएंगे। सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देने के लिए स्कूल ओलंपिक्स भी करवाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि बेहतरीन और जदीद तालीम का हसूल हर बच्चे का हक है और इस सिलसिले में तमाम वसाइल को बरूए कार लाया जाएगा। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम अज़्ज़ाबी के दरमियान मुलाकात में पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला किया गया है। लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में दो तरफा मौशी ताउन, पंजाब में तरक्याती मंसूबों और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों को सूबे में सरमायाकारी की दावत देते हुए खुसूसी मुराद और साजगार माहौल की यकीन दहानी कराई। UAE के सफ़ीर ने जारी तरक्याती मंसूबों और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक इक़दामात पर वज़ीर आला पंजाब की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मज़ीद मंसूबों पर काम करना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। लाहौर में ताजिर बरादरी से खिताब में उन्होंने कहा कि तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मजबूत बनाना होगी। तफसील बताएंगे मुअज़्ज़मुद्दीन। ऐवान सनत व तजारत लाहौर के दौरे के मौके पर ताजरों और कारोबारी बरादरी से खिताब करते हुए सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि मुल्क की मईशत में ताजरों का अहम किरदार है। पायदार मौशी तरक्की और मौशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई करना होगी। It is my firm conviction that by strengthening public-private collaboration, we can not only navigate these difficult times, but also set a solid foundation for the Pakistan's economic revival. Charter of Economy की ज़रूरत है, इसलिए we should all work for political stability so that we should achieve the economic stability. चेयरमैन सेनेट ने कहा कि टैक्स नेट में इजाफे के लिए टैक्स अदायगी की आगाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ताजिर बरादरी मेरे दिल के करीब है, उनके मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करता रहूंगा। ऐवान सनत और तजारत लाहौर के सदर मियाँ अबू जरशाद ने कहा कि सियासी जमातों को हड़तालों की बजाय अपने मसाइल ऐवानों में हल करने चाहिए। एक दिन की हड़ताल से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान होता है। उन्होंने मुल्क से महंगाई में कमी और मौशी बेहतरी के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात को सराहा। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी तवानाई के हसूल का शफाफ जरिया है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट यूनिट 5 की फर्स्ट कंक्रीट पोरिंग तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चश्मा यूनिट 5 से कौमी ग्रिड में मजीद बिजली शामिल होगी। तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। तकरीब से खिताब करते हुए मनसूबाबंदी के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि चश्मा न्यूक्लियर मंसूबा तरक्की और खुशहाली का अहम संग मील है। माहौल दोस्त तवानाई के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का फरोग जरूरी है। न्यूक्लियर एनर्जी प्लेज a vital role in Pakistan's energy mix, offering a clean, reliable and affordable solution to our energy challenges. Currently, Pakistan's nuclear power plants, including the 4 operational units at Chashma, C1, C2, C3 and C4 and the 2 at Karachi contribute over 3,500 megawatts to the national grid. This constitutes a significant share of the country's clean and green electricity, reducing our reliance on imported fossil fuels and lowering energy costs. वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी तवानाई बहरान का देर पा हल है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी आलमी मेयारात के मुताबिक महफूज और मौसर है। The development of a mega project like C5 with the support of China reflects the trust and confidence the Chinese leadership has in Pakistan's economy. This investment strengthens the energy sector and demonstrates
Pakistan's potential as a reliable partner in large-scale infrastructure and technological projects. C5 is a shining example of this collaboration, addressing Pakistan's energy needs while advancing the broader goals of CPEC. पाकिस्तान में चीन के सफीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन का ताउन मुश्तरका कामयाबी की जमानत है। पाक चीन दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पायदार तरक्की के लिए अमन, सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज का तसलसल जरूरी है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तकरीब से खिताब के दौरान उनका कहना था कि पॉलिसीज के समरात आवाम तक पहुंचाने की अहम जिम्मेदारी सिविल सर्वेंट्स पर आयद होती है। तफसील बता रहे हैं लाहौर से आसिम नज़ीर भट्टी। लाहौर में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैंपस CSA में 47वें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान की पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर प्रोफेसर एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क को इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है और मुल्क की तरक्की के लिए इज्तिमाई काविशों की जरूरत है। Pakistan today stands at an inflection point. We have two choices. Either we continue to tread the path of status quo and business as usual, or we take a transformative journey. It is important because in 23 years we will all be witnessing a big milestone in the history of this nation, which will be the centennial of our independence. वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि सरकारी अफसरान अवामी खिदमत को अपना शार बनाएं। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस सिर्फ एक कैरियर नहीं बल्कि मिशन का नाम है। Your reputation is a fragrance that you cannot hide. You will go on assignments. आप AC लगेंगे, DC लगेंगे, आप सेक्रेटरी लगेंगे, वो टेन्योर आपका 2 साल का होगा, 1.5 साल का होगा, 3 साल का होगा, लेकिन जब आप वहाँ से जाओगे the legacy you will leave will be permanent, और वो लोग हमेशा याद रखेंगे। तकरीब में सिविल सर्विसेज एकेडमी के डायरेक्टर जनरल फरहान अजीज ख्वाजा ने अफसरान को कोर्स के दौरान मुख्तलिफ शोबों में दी जाने वाली पेशा वराना तरबियत पर रोशनी डाली। दौरान ट्रेनिंग में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान को अवार्ड से भी नवाजा गया। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग का 118वां यौम तासीस इस अज़्म के साथ मनाया गया कि वतन अजीज़ के हुसूल के लिए हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मुस्लिम लीग के यौम तासीस पर मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से कायद आज़म और तहरीक पाकिस्तान के दीगर रहनुमाओं की जद्दोजहद के नतीजे में एक आज़ाद वतन का क़याम अमल में आया। यौम तासीस के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया। तफसील बता रही हैं नमरा सुहेल। मुस्लिम लीग ने जहां पाकिस्तान की सूरत में जनूबी एशिया के मुसलमानों को एक अलहदा वतन दिया, वहीं ये जमात पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में रोज़े अव्वल से पेश है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सफ़र में कई नशेब व फराज आए, मगर इस जमात की जज्बा तामीर में ना तो कमी आई और ना ही कोई रुकावट। यौम तासीस के मौके पर अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 118 साल पहले मुस्लिम लीग के क़याम के बाद मुसलमानों के दिल में नए और आज़ाद वतन की ख्वाहिश पैदा हुई। मुसलसल जद्दोजहद से बरे सगीर के मुसलमानों को एक अलहदा और आज़ाद वतन नसीब हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि बानियाने पाकिस्तान के विजन को सामने रखते हुए मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए गुज़श्ता 3.5 दहाइयों से मसरूफ़ अमल हैं। यौम तासीस के मौके पर इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग के सेक्रेटेरिएट में खुसूसी तकरीब हुई। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनान ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए मेहनत जारी रखने के अज़्म का अयादा किया। तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुल्क की माशी तरक्की के लिए कोशा है। ये माहौल जो इस मुल्क का है, यहाँ की सियासत हो, यहाँ कारोबार हो, ये सब पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है और सिर्फ पाकिस्तान के साथ इस हवाले से वाबस्ता नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ हो, बल्कि खुशहाल पाकिस्तान। तकरीब से खिताब में मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी ने कहा कि तारीख गवाह है कि मुस्लिम लीग अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की तवाना आवाज़ साबित हुई है। 1906 में जब मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई तो उस वक्त वो अज़म और वो जोद मुसलसल का जो तसव्वुर था, एक ऐसा मुल्क कि जिसमें मुसलमान अपने अकीदे के मुताबिक एक बाइज़्ज़त और बावकार ज़िंदगी
गुजार सकें। तकरीब से खिताब में रहनुमा मुस्लिम लीग अंजुम अकील खान और खुर्रम शहजाद नवाज ने कहा कि रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान की खुशहाली का सफर जारी रखेंगे। यौम तासीस के मौके पर मुस्लिम लीग नून की खवातीन विंग की रहनुमाओं से मुलाकात में चीफ विप तारिक फजल चौधरी ने मुल्क व कौम की तरक्की में खवातीन के किरदार की अहमियत पर जोर दिया। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने साल 2024 में अवाम की बेहतरी के लिए रिकॉर्ड मंसूबे शुरू किए। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। फरवरी 2024 में मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब की पहली खातून वजीर आला का मनसब संभाला तो सूबे के आवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाने का अज़्म किया। इसे इनका विजन कहें या काम की लगन, मरियम नवाज मुख्तसर अरसे में सबसे ज्यादा तरक्याती मंसूबे शुरू करने वाली वजीर आला बन गई हैं। आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाना इन मंसूबों का अहम पहलू है। मुआशरे के पसमानदा तबके को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत आसान शराइत पर छत फराहम की जा रही है। धी रानी प्रोग्राम के तहत जरूरतमंद बच्चियों की शादी का एहतमाम भी किया जा रहा है। पंजाब भर में जीरो वेस्ट पॉलिसी पर अमल करते हुए सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज किया गया है। फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए मॉनिटरिंग के मरबूत निजाम और स्मोक के खात्मे के इकदाम भी काबिल तारीफ हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स पिछले 7-8 माह 10 माह के अंदर लिए हैं, ये जल्द इंशाल्लाह इनके असरात भी नजर आएंगे और हम इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी देखेंगे नीचे तक। आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए फील्ड अस्पताल, पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज, क्लिनिक ऑन व्हील, चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम और फ्री मेडिसिन की फरहमी जैसे मंसूबे काबिल रश्क हैं। नौजवानों को आला तालीम से आरास्ता करने का अज़्म लिए होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जबकि पंजाब की तारीख में पहली मरतबा वर्चुअल वुमन पुलिस स्टेशन कायम किया गया है, जिसके जरिए तशद्दुद, ज्यादती, एहतसाल और दीगर जराइम का निशाना बनने वाली खवातीन को फौरी रिलीफ की फरहमी मुमकिन हो रही है। 10 माह के दौरान वजीर आला पंजाब के तरक्याती कामों के विजन के असरात जिंदगी के हर शोबे में नुमाया नजर आ रहे हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज की हुकूमत के पहले 10 माह अवामी खिदमत से इबारत हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि तालीम, सेहत, ज़राअत, सनत हर शोबे में रिकॉर्ड मंसूबों के आगाज से पंजाब तरक्की की शाहराह पर गामजन है। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद हयात। लाहौर में मीडिया के नुमाइंदों से खिताब के दौरान पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने पंजाब हुकूमत की 10 माह की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे के हर तबके और शोबे से वाबस्ता अफराद की तरक्की और खुशहाली के लिए इनकलाबी इकदाम किए। फील्ड अस्पताल, मुफ्त अद्वियात की फराहमी, एयर एम्बुलेंस सर्विस के बाद लाहौर में पहला 1000 बिस्तर पर मुश्तमिल नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और सरगोदा में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जा रहा है, जबकि ऑटिज्म के शिकार बच्चों की बहाली के लिए पहला हुसूसी स्कूल भी तकमील के मराहल में है। तालीम के फरोग के लिए 50,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स और 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। अज़मा बुखारी ने कहा कि नौजवानों के हाथों में किलो वाले डंडे नहीं बल्कि लैपटॉप दिए जा रहे हैं, जबकि स्कूलों की रिवैम्पिंग की जा रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए नवाज शरीफ IT सिटी बना रहे हैं, जहां गूगल समेत इंटरनेशनल इदारे अपने दफातर बनाएंगे। अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बिजली के बिलों में 54 अरब रुपए की सब्सिडी दी। मरियम नवाज की हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिसने कट लगाने की बजाय अपने हर एक मंसूबे की तादाद में, उसके पैसों में, उसके बेनिफिशरीज में इजाफा किया है। किसान कार्ड बहुत बड़ा प्रोग्राम है, चीफ मिनिस्टर साहबा का 400 अरब रुपए का प्रोग्राम है, जिसमें से अभी तक जो है 30 अरब रुपए से ज़्यादा की ख़रीदारी जो है वो खाद की शक्ल में और पेस्टिसाइड्स की शक्ल में जो है वो किसान अभी तक कर चुके हैं। कैंसर, TB और हेपेटाइटिस के जो मरीज़ हैं उनको मुफ्त अद्वियात उनके घरों तक पहुंचाई गई। वो बच्चे जो है जिनकी हार्ट सर्जरियां सालों साल तक जो है वो रुकी हुई थी या उनको 2025, 26, 27 तक के जो है वो टाइम दिए गए थे, उन बच्चों की सर्जरीज ना सिर्फ शुरू हो चुकी हैं, 500 से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस वक्त उनकी हार्ट सर्जरीज मुकम्मल कर दी गई हैं। अस्पतालों की रिवैम्पिंग जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो जारी है। उसके बाद अपना छत अपना घर जो है प्रोग्राम में 15 लाख तक के बिला सूद कर्जे जो है लोगों को दिए और इस वक्त सैकड़ों घर तकमील के मराहिल में हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा पंजाब हुकूमत ने 10 माह के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान समेत हर शोबा तनज़्ज़ुली का शिकार है। अब KPK भी एक हुकूमत है, वहाँ पर अब जो कुर्रम और पारा चनार के अंदर जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। और अब यहाँ पर भी जो है वो कराची के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं, यहाँ पर भी सड़कें बंद हैं।
वहाँ की सड़कें खुलाना ये गंडापुर साहब का काम है, मरियम नवाज साहिबा का या शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। अज़मा बुहारी ने कहा कि रमज़ान बाज़ारों के जरिए अवाम को पिछले रमज़ान में खसूसी रिलीफ दिया गया और अब अगले रमज़ान के लिए भी प्रोग्राम की तैयारी आखिरी मराहल में है। अज़मा बुहारी ने कहा कि न्यूट्रिशन प्रोग्राम जनूबी पंजाब से शुरू किया, दस्तक ऐप मुतारिफ करवाई गई और खसूसी अफराद को हिम्मत कार्ड्स दिए गए। वुमेन्स सेफ्टी ऐप, पिंक बटन और 10 साल स्मोक पॉलिसी के तहत लाहौर में स्मोक टावर भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। अज़मा बुहारी ने कहा कि लाहौर बहुत जल्द स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का अवामी हिदमत का मिशन आइंदा बरस भी जारी रहेगा। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। उधर खैबर पख्तूनख्वा के गोदामों में जखीरा की गई 10 अरब रुपए मालियत की गंदम खराब होने का संगीन मामला सामने आया है और इसी सिलसिले में सूबाई असेंबली के इजलास में बहस भी हुई। तफसील बताएंगे मोहम्मद सज्जाद। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तुरू ने पेशावर में सूबाई असम्बली को बताया कि गोदामों में पड़ी सरकारी गंदम की शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की लेबॉर्टरी रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 77,762 मीट्रिक टन गंदम खराब हो चुकी है। गंदम के मजीद तजिए के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है, जबकि नमूने फैसलाबाद की लेबॉर्टरी भी भेजे गए हैं। वजीर खुराक ने मजीद बताया कि ये गंदम PTI और निगरान हुकूमत के साबिक अदवार में खरीदी गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि गंदम के काबिल इस्तेमाल होने या न होने का हतमी फैसला तीसरे टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक खराब गंदम को फ्लोर मिल्स पर फरोख्त करने की कोशिश की गई, लेकिन फ्लोर मिल्स मालिकान ने आधी कीमत पर भी इसे खरीदने से इनकार कर दिया था। महकमे खुराक के हुकाम का कहना है कि ये गंदम 2023 में पास्को से खरीदी गई थी और मुख्तलिफ गोदामों में जखीरा की गई थी, जहाँ ये खराब हो गई है। अवामी हल के इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं और सवालात उठा रहे हैं। मोहम्मद सज्जाद, PTV न्यूज़, पेशावर। 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेर तरबियत अफसरान के एक वफ़द ने आज वज़ारत कानून और इंसाफ का दौरा किया। ज़ेर तरबियत अफसरान ने वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को फ़रोग़ देने के हवाले से हुकूमत के मनसूबों और आज़म पर तबादला ख्याल हुआ। वफ़द को ड्राफ्टिंग और कानून साजी समेत वज़ारत के मुख्तलिफ उमूर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ज़ेर तरबियत अफसरान को कानूनी तरीक़ाकार को जदीद बनाने और तमाम शहरियों को इंसाफ तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए वज़ारत के मनसूबों के हवाले से भी आगाह किया गया। वफाकी वज़ीर हाउसिंग रियाज हुसैन पीरज़ादा ने इस्लामाबाद में थैलेसीमिया सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि थैलेसीमिया के तदारुक के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। थैलेसीमिया के तदारुक और इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ जैसे कार खैर में निजी और इज्तमाही तौर पर सबको सुंदस फाउंडेशन के साथ हिस्सा लेना चाहिए, ताकि खिदमत, मोहब्बत और दर्द बांटने के लिए शमा हमेशा जलती रहे। हम अपने मुल्क में तो ये ख्याल करें कि हम अपने मुल्क को महफूज करें। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने चुनियोट में मीडिया से गुफ्तगू की है, जिसमें उनका यह कहना है कि हुकूमत बेहतरीन पॉलिसीज़ पर अमल पैरा है, जिसके नताइज मौशी इस्तेहकाम की सूरत में आना शुरू हो गए हैं। तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने कहा कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है और महंगाई में कमी हुई है। उन्होंने कहा कि तरक्की करता हुआ पाकिस्तान पूरी कौम के लिए फायदा मंद है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सियासी जमातों के दरमियान मामलात को हल करने के लिए मुज़ाकरात बेहतरीन जमहूरी तरीक़ाए कार है। बात हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज की होती है, पॉलिटिकल लोगों की होती है। ये अच्छी बात है कि दोनों ने ग्रुपों ने, हुकूमत में जो पार्टियां हैं और जो अपोजिशन में 2-3 पार्टियां हैं, उन्होंने मिल के मुज़ाकरात का फैसला किया है। बेहतरीन तरीक़ाकार है। असेंबली में भी डायलॉग होना चाहिए, बाहर भी डायलॉग होना चाहिए। कैसर अहमद शेख के डेरे पर लगाई जाने वाली खुली कचहरी में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वफाकी वजीर ने खुली कचहरी में लोगों के मसाइल सुने और इनके हल के लिए मौका पर ही मुतलका हुकाम को हिदायत जारी की। खुली कचहरी में मुस्तहिक अफराद में गर्म बिस्तर भी तकसीम किए गए। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, चनियोट। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि मसनूई जहानत की बदौलत दुनिया तेजी से तब्दील हो रही है, हमें नए दौर के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयारी करना होगी। लाहौर में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि फ़नून लतीफ़ा कौमी तशख़्ख़ुस की तामीर में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। तलबा आर्ट के फ़रोग़ के लिए अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मौजूदा हालात में तमाम सियासी जमातें हम आहंगी को फ़रोग़ दें। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुमकिन है।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत के दौरान इस्तगासा के एक और गवाह का बयान और जिरह मुकम्मल हो गई है। अदालत ने इस्तगासा के मजीद 2 गवाहान को तलब करते हुए समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। काबीना डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बुनियामीन का बयान रिकॉर्ड किया गया। गवाह ने साबिक चेयरमैन पीटीआई को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले 108 तहाइफ का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। गवाह ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से वसूल किए गए तोशाखाना तहाइफ की तफसील भी पेश की। इस्तगासा की जानिब से तोशाखाना 2 केस में मजबूती तौर पर 23 गवाहान पेश किए जाएंगे। SIFC की मौसर पॉलिसीज और हुकूमती काविशों के बायस गैर मुल्की सरमायाकारी और इक्तिसादी तरक्की के लिए राहें हमवार की जा रही हैं। पाकिस्तान और केनिया के तिजारती शराकतदारी में अहम पेशरफ्त हुई है। दोनों ममालिक के दरमियान आज़ाद तिजारत के समझौते समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के लिए ताउन जारी है। आज़ाद तिजारत का मकसद आलमी तिजारती ताल्लुकात का फ़रोग़, सनतों की तरक्की और कारोबारी मौक़े में इजाफा करना है। पाकिस्तान की जानिब से केनिया को दवाएं, पिंक सॉल्ट, मार्बल और सीमेंट बरामद करने के इम्कानात पर बातचीत जारी है। अफवाज पाकिस्तान की रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निमटने की तरबियत का मकसद पेशा वराना सलाहियतों में इजाफे के साथ साथ तरबियती मयार बेहतर बनाना है। इंसदार दहशतगर्दी की तरबियत के लिए नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर कायम किया गया है, जिसके साथ इलाकाई कैंप्स मुल्क भर में फैले हुए हैं। इन सेंटर्स में रवा साल दोस्त ममालिक के सैकड़ों गैर मुल्की ट्रेनर्स को तरबियत भी दी जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान में कई गैर मुल्की ऑफिसर्स और जवान ज़ेर तरबियत हैं। इन मुश्तरका मशकों का एक मकसद काउंटर टेररिज्म की मद में एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफादा करना है। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर इंतकाल कर गए हैं। नोबेल इनाम याफ्ता साबिक सदर ने 100 साल उम्र पाई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। सदर मुमलिकत ने साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर के ख़ानदान, अमरीकी हुकूमत और अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि आलमी अमन और इंसानी हकूक़ के शोबे में साबिक अमरीकी सदर की खिदमात याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ताज़ियती पैगाम में साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर के अहले खाना और अमरीकी अवाम से दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिमी कार्टर की इनकसारी मुदब्बिराना सलाहियतों, आलमी अमन के लिए वकालत और इंसानी हमदर्दी की खिदमत ता देर याद रखी जाएंगी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे में गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फोर्सेस के हमलों में 27 फलस्तीनी शहीद जबकि 149 जख्मी हो गए। शुमाली गजा में झड़प के दौरान एक इसराइली फौजी हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। कमाल अदवान अस्पताल के बाद इसराइली फोर्सेस ने शुमाली गजा में मजीद अस्पतालों पर भी धावा बोला है। आलमी इदारा सेहत ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि गजा में अस्पतालों पर इसराइली हमले और गिरफ्तारियां नाकाबिल कबूल हैं। जनीन में काबिज फौज की फायरिंग से एक खातून शहीद हो गई। दूसरी जानिब लबनान में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। सिहोनी फोर्सेस की जानिब से जनूबी लबनान के शहर नबातिया के मुतादिद कस्बों को निशाना बनाया गया। शाम में तहरीर शाम के सरबराह अहमद अशरा ने कहा है कि बहुत जल्द कौमी डायलॉग कॉन्फ्रेंस में तहरीर शाम को बाकायदा तौर पर तहलील करने का ऐलान किया जाएगा। अल अरबिया को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि शाम में आइन की तैयारी में 3 साल और इंतखाबात के इनेकाद में 4 साल लग सकते हैं। शाम के रूस के साथ स्ट्रेटेजिक मफादात हैं। हम नहीं चाहते रूस शाम से ताल्लुकात को गैर मौजू तरीके से छोड़ दे। उन्होंने मजीद कहा कि शाम की वजारत दिफा कुर्द फोर्सेस को अपनी सफ़ों में जम करेगी। उम्मीद है कि नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शाम से पाबंदियां उठा लेंगे। उन्होंने कहा कि दमिश्क में नई इंतजामिया अपने पड़ोसी ममालिक को यकीन दिलाते हैं कि शाम की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि तमाम इलाकाई रियासतों के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिशमंद है। अहमद अशरा ने मजीद कहा कि शाम के मुस्तकबिल में सऊदी अरब का अहम किरदार है। शाम के बारे में सऊदी अरब के हालिया बयानात बहुत मस्बत हैं। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत हुकूमत महज एक दिखावा है और आज भी तमाम इख्तियारात नई दिल्ली के पास हैं, जिसकी नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कर रहे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक उसकी ताज़ा मिसाल ये है कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को शेख अब्दुल्ला के यौम पैदाइश और यौम शोहदा जम्मू की छुट्टियाँ बहाल करने की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन गवर्नर के हुक्म से जारी करदा छुट्टियों की फहरिस्त में ये छुट्टियाँ शामिल नहीं की गईं, जिससे इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि असल इख्तियार किसके पास है। इन छुट्टियों को 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इकदामात के बाद भारतीय हुकूमत ने खत्म कर दिया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत और मकबूजा इलाके के मुख्तलिफ जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों की हालत इज़हार पर सख्त तशवीश का इजहार किया है।
حریت ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا کہ بہت سے قیدی طبی سہولیات اور مناسب خوراک کی عدم دستیابی کی وجہ سے صحت کے شدید مسائل سے دوچار ہیں۔ حریت ترجمان نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ سمیت انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کیا ہے کہ وہ کشمیری نظر بندوں کی رہائی کو یقینی بنائیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ مدارس کے حوالے سے صدارتی آرڈیننس میں دونوں فریقین کا نقطہ نظر تسلیم کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اب تک 18,000 سے زائد مدارس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کرم کے مسئلے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ کرم ایجنسی کے حوالے سے جو وہاں صورتحال ہے، پرچنار میں، بکرین میں، مسائل کا حل طاقت سے نہیں ہوتا، مذاکرات سے ہوتا ہے۔ اس کو فرقہ وارانہ رنگ دینا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے۔ تقریباً 18,600 مدارس اب تک مذہبی ایجوکیشن کے حوالے سے اس کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ دو نقطہ نظر تھے، دونوں کو اس آرڈیننس میں مانا گیا ہے، دونوں کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ہمارے مدارس قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھنے پڑھانے کا مرکز ہے اور یہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رہیں گے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے سیف سٹی اتھارٹی کو کراچی میں کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سیف سٹی دفتر کے دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 5 اور اگلے 2 مہینوں میں باقی ایمرجنسی رسپانس وہیکلز کراچی کی سڑکوں پر ہونی چاہیے۔ ڈی جی سیف سٹی آصف اعجاز شیخ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ایمرجنسی رسپانس وہیکلز کے فیچرز کے حوالے سے بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ ایمرجنسی رسپانس وہیکل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فیچرز سے لیس ہے اور ERV میں چہرے اور گاڑیوں کے نمبر پلیٹس کی شناخت کے فیچرز ہیں۔ پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید الزابی نے لاہور میں ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر سردار سلیم حیدر نے UAE کے سفیر کو پاکستانیوں بالخصوص طلبہ کو ویزا ملنے میں مشکلات سے آگاہ کیا۔ UAE کے سفیر نے ویزے کے حوالے سے پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اسلام آباد میں ٹریفک کے مسائل حل کرنے کے لیے سرینا چوک انڈر پاس اور جناح ایونیو F8 فلائی اوور پر ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد فیصل راؤ۔ جدید ٹیکنالوجی اور اعلیٰ معیار کے اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے اضافی مشینری کی مدد سے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے تاکہ شہریوں کو بہتر سے بہتر سفری سہولیات مہیا کی جا سکیں۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر روڈز رانا طارق محمود نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ سرینا چوک انڈر پاس اور جناح ایونیو F8 فلائی اوور کو مقررہ مدت سے پہلے مکمل کیا جا سکے۔ 100 دن کا ٹارگٹ دیا گیا تھا اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے، لیکن ہم نے اس کے انڈر پاس کو زیادہ سپیڈیلی ٹیک اپ کیا تاکہ ایک پورشن جو ہے ہم اس کو مکمل کر کے پبلک کو ریلیف دے سکیں۔ جو اس کا ایک کمپوننٹ ہے فلائی اوور کا، اس کے اوپر بھی تیزی سے کام جاری ہے، رادر راؤنڈ دی کلاک کام جاری ہے۔ جناح ایونیو 9th ایونیو انٹرسیکشن اینڈ 9th ایونیو ابن سینا انٹرسیکشن، یہ دونوں کو ہم نے سگنل فری کیا ہے۔ ان منصوبوں کی تعمیر میں جدید ٹیکنالوجی اور اعلیٰ معیار کا میٹیریل استعمال کیا گیا ہے تاکہ یہ مضبوط اور دیر پا ہوں۔ ان تعمیراتی منصوبوں سے شہر کے بنیادی ڈھانچے میں اضافہ ہوگا اور ٹریفک کی روانی میں بہتری آئے گی۔ سرینا چوک انڈر پاس اور جناح ایونیو فلائی اوور کی تکمیل سے اسلام آباد کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا اور ٹریفک کی روانی میں بھی بہتری آئے گی۔ محمد فیصل راؤ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے زیادہ تر میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں درمیانی سے شدید دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ خبر کیوں کر دیں 21 کھیلوں کی خبروں کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں سال 2024 کھیلوں کے حوالے سے پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہوا۔ پاکستانی کھلاڑیوں نے اولمپکس اور پیرالمپکس کے علاوہ دیگر کھیلوں میں بھی میڈلز جیتے اور ملک کا نام روشن کیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ذیشان قیوم کی یہ رپورٹ۔
وطن واپسی پر بھی ارشد ندیم کا فقید المثال استقبال کیا گیا اور ان پر انعامات کی بارش ہوئی۔ اولمپکس کے بعد پیرالمپکس میں بھی سبز ہلالی پرچم بلند ہوا جب پاکستانی ایتھلیٹ حیدر علی نے پیرس پیرالمپکس کے ڈسکس تھرو میں کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ پیرالمپک گیمز میں حیدر علی کا یہ مجموعی طور پر چوتھا تمغہ تھا۔ سنوکر سے بھی پاکستان کو اچھی خبر ملی جب محمد آصف نے IBSF ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ جیت کر تیسری مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ دوحہ میں کھیلے گئے فائنل میں محمد آصف نے ایران کے علی غراغوزلو کو 5-3 فریم سے شکست دی۔ پاکستان بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کا چیمپئن بنا۔ ملتان میں کھیلے گئے فائنل میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 10 وکٹوں سے شکست دے کر پہلی مرتبہ اعزاز حاصل کیا۔ ہاکی کے میدان میں پاکستانی ٹیم لڑتی نظر آئی۔ سلطان ازلان شاہ ہاکی کپ میں پاکستان نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ قومی ٹیم نے 13 سال بعد ایونٹ کا فائنل کھیلا تھا۔ چین میں ہونے والی ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان نے جنوبی کوریا کو شکست دے کر کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ US جونیئر اوپن سکواش چیمپئن شپ میں پاکستانی کھلاڑیوں نے ٹائٹلز جیت لیے۔ انڈر 11 کیٹیگری کا ٹائٹل محمد ہرماس علی راجہ کے نام رہا۔ گرلز انڈر 13 کا ٹائٹل مہنور علی نے جیتا۔ دبئی میں کراٹے کامبیٹ میں پاکستان نے بھارت کو 2-1 سے شکست دی۔ رضوان علی اور شہزیب رند کے ہاتھوں بھارتی فائٹرز چاروں شانے چت ہو گئے۔ پاکستان کی 3 پاور لفٹر بہنوں نے جنوبی افریقہ میں بین الاقوامی کلاسک اور اکوپڈ پاور لفٹنگ ایونٹ میں مجموعی طور پر 15 گولڈ میڈلز جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ ٹوئنکل سہیل، سیبل سہیل اور ویرونکا سہیل نے شاندار کارکردگی دکھا کر ریکارڈ قائم کیا۔ ذیشان قیوم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پاکستان کے اذان علی خان نے تاریخ رقم کر دی۔ اسکاٹش جونیئر اوپن سکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ ایڈنبرگ میں کھیلے گئے فائنل میں اذان علی خان نے سوئٹزرلینڈ کے لینڈرو واگل کو شکست دی۔ اذان علی خان چیمپئن شپ میں ناقابل شکست رہے۔ انہوں نے کامیابی اور ٹائٹل پاکستان میں اسکولوں سے باہر بچوں کے نام کر دی۔ چیمپئن شپ میں کینیڈا، برطانیہ، اٹلی، مصر اور امریکہ سمیت 22 ممالک سے کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ اذان علی خان برٹش اوپن ورلڈ جونیئر سکواش چیمپئن شپ میں بھی حصہ لے رہے ہیں جو 2 جنوری سے 6 جنوری تک برمنگھم میں منعقد ہوگی۔ نور دستگیر بٹ نے قائد اعظم پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا۔ لاہور میں جاری قومی مقابلوں میں نور دستگیر بٹ نے 401 کلو گرام وزن اٹھا کر ایشیا کا نیا ریکارڈ بنا دیا اور نیشنل قائد اعظم ٹرافی بھی اپنے نام کر لی۔ نور دستگیر بٹ نے اس سے قبل ایشین پاور لفٹنگ مقابلوں میں 400 کلو گرام وزن اٹھا کر ریکارڈ قائم کیا۔ بہت شکریہ انیس صاحب کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔ درست ہر وقت بر وقت